Good evening, students. Now we continue our chapter 13, photoelectric effect, and our next topic is effect of intensity of light on photoelectric current. In our previous video, we discussed about the effect of potential on photoelectric current, and in our previous video, we studied that when we increases the potential, positive potential, then current becomes maximum and then saturated, and when we increases the negative potential of anode, then we see that at a particular voltage, at a particular negative voltage, the value of current becomes zero, and this voltage is called the stopping potential. Okay, now the second point is the intensity, effect of intensity of light on photoelectric current. Here we see that a short diagram, a symbolic diagram of our experiment. Here the cathode and this is anode. When we increases the intensity of light, then this intensity of light increases the number of electrons, and when these number of electrons increases, then the value of current is also increases. That means the saturation level is also increases. So in other words, we say that when we increases the intensity of light, then the number of electrons which emitted from the cathode is also increases, and when the number of electrons are increases, then the large number of electron reaches to the anode, and the value of current is also increases. When the value of current increases, then saturation point is increases. But in this case, the stopping potential does not change, because the stopping potential not depends on the number of electrons. Stopping potential depends on the energy of electrons. It is a very important point that you remember it, that the stopping potential depends on the energy of electron, not the number of. तो इंटेंसिटी अगर इंक्रीज भी होती है तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है. सिर्फ इंपैक्ट किस चीज पर आएगा? इलेक्ट्रिक करंट पे. वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and saturation point is increases. Got it? So now we draw a graph. Here we see that here this one, and this one. So we see that this is the intensity I1, this is the intensity I2, and this is intensity I3. In all values, we see here that for intensity I1, the value of current is this. When we increases the intensity I2, order of increasing, we write here I3 greater than I2 greater than I1. So when we increases the intensity from I1 to I2, the number of electrons is also increases, and the value of current is increases. When we increases more intensity, that means I2 to I3, then current is also increases, and the saturation point is also increases. But in these three cases, we see here the stopping potential is not changed. The stopping potential is not changed. Why? Because the stopping potential not depends on the number of electrons, it depends on the energy of electrons. Got it? So this is your second point. And here we see that if the source of light, suppose if the source of light by which the radiations are emitted are situated at a far distance from the cathode, then the intensity is also decreases. अगर आप सोर्स ऑफ लाइट जहां से आपके रेडिएशंस आ रहे हैं उनकी डिस्टेंस को आप इंक्रीज कर देते हैं तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो हम यहां पर ये कहते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स. Okay, so this is your relation which indicates that the intensity of light is inversely proportional to the distance. ठीक है, तो this is the second point which shows the intensity of light effect on photoelectric current. Now we take a third point. Now we take a third point, effect of frequency. Effect of frequency on photoelectric current.
Firstly, we see a relation, a common, a normal, a general relation that equals to h mu. That is the frequency depends, energy depends on the frequency. अब यहां हम ये देखते हैं कि अगर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को कैथोड पर इंसिडेंस करते हैं तो कैथोड से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही रहेंगे, बट जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को मोर करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो इंक्रीज करने से क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, न्यू के. तो व्हेन यू इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑन द कैथोड, then the energy of photoelectrons are also increases, and when the energy of photoelectrons are increases तो उनको रोकने के लिए एनोड पर स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा. तो here the stopping potential is also increases. तो यहां पर हम ये कहते हैं कि frequency does not increases the number of electron, but the frequency increases the energy of electron, and due to the increment of the energy of electron we should increases the stopping potential. तो यहां पर जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस ग्राफ में हम ये देखते हैं, अच्छा एक चीज और, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इंक्रीजेस, सो द करंट इज कांस्टेंट, सैचुरेशन करंट इज आल्सो कांस्टेंट, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल आर डिफरेंट. ठीक है, तो हियर वी सी ए ग्राफ, दिस वन, this is the saturation current, this is your potential, and this is photoelectric current. So this is your third effect of photoelectric current is frequency. That when you increases the frequency, then the energy of electrons is increases, and due to the increment of energy of electrons we should increases the stopping potential for stopping the electrons reaches to a anode. Okay, तो इस कंडीशन के अंदर value of current does not changes, value of current are constant, and saturation point is also constant. So these are the three factors on which we define the photoelectric effect. Got it? So now on the basis of these three factors we summarize the photoelectric effect. अब हम यहाँ पर photoelectric effect को summarize करते हैं, उसकी summary बोलते हैं. तो summarize क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जब हम एक sufficient frequency की light, समझिएगा बहुत ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि जब हम एक sufficient frequency की light को किसी metallic surface पर इंसिडेंस करते हैं, समरी पढ़ रहे हैं, अब हम इसके कंक्लूजन्स पढ़ रहे हैं, किसी मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंस करते हैं तो उस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. ठीक है, दिस एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी एपरेंट टाइमिंग, यानी इस एमिशन में कोई टाइमिंग नहीं लगता, जैसे ही लाइट इंसिडेंस हुई इमीडिएट वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाता है. तो यहां पर हमें कहते हैं कि दिस इंसिडेंस डज नॉट टेक एनी एपरेंट टाइम. ओके, सेकंड पॉइंट आपका कहता है कि अगर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ली है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू जीरो. तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम, वो इंसिडेंस एनर्जी से अगर लेस है देन नो प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. यानी अगर आपने इंसिडेंट लाइट जो फॉल डाउन की है मेटेलिक सरफेस पर, उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फिर वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, चाहे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी ही क्यों ना हो. तो इसका मतलब ये हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्रीक्वेंसी, नॉट द इंटेंसिटी. अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस देन है तो फिर उस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस. ओके, ठीक है. थर्ड पॉइंट हम लेते हैं कि जब हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जब मेटेलिक सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है.
यानी 0 से इनफाइनाइट के बीच में फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। तो दिस इज योर थर्ड पॉइंट। ओके, नाउ द फोर्थ समराइज पॉइंट इज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज स्टॉप्ड। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब स्टॉप होगा? जब आपके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल जब काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से एमिट हो रहे हैं वो एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जब वो एनोड तक नहीं पहुंच पाए तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी पॉसिबल नहीं है। तो किस कंडीशन में? के मैक्सिमम, दैट मींस योर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी हम ये कह सकते हैं यहां पर कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अगर ऐसा होता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल हो जाती है तो देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मैं अभी बता चुका हूं सेकंड पॉइंट में। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ध्यान से समझिएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करती है, उनकी एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती। जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड नहीं करता। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इट मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये फिर किस पर डिपेंड करता है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट से क्या इंक्रीज होता है? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस होता है। आपके जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे उतनी ज्यादा करंट इंक्रीज होगी। तो due to the increasing of the intensity of light, the saturation current becomes increases. So these are the summary of the photoelectric emission. Okay, अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए एक वेव थ्योरी भी है। वेव थ्योरी के बेस पे भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन किया गया, लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई। कई जगह पर जाकर इस थ्योरी को जो हमने अभी एक्सपेरिमेंटल क्लूज देखे थे वो ये प्रूफ नहीं कर पाई, तो ये फेलियर ऑफ वेव थ्योरी हुआ। तो यहां पर हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो यहां पर अब हम फेलियर ऑफ वेव थ्योरी की बात करते हैं। तो किन किन जगह पर जो वेव थ्योरी थी वो आपकी फेल हो गई उसको हम समझते हैं। तो हम ये कहते हैं कि वेव थ्योरी क्या कहती है? वेव थ्योरी ये कहती है कि जो वेव्स हैं या जो लाइट है वो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को क्या बताया इन्होंने? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी द लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड कंसिस्ट होंगे, दोनों इफेक्ट कंसिस्ट होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है, वो ट्रैवल कर रही है, तो कंटिन्यूअसली एनर्जी का एमिशन करेगी, कंटिन्यूअसली एनर्जी का रेडिएशन करेगी। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर ये कंटिन्यूअसली एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करती है या कंटिन्यूअसली एनर्जी का एमिशन करती है, तो इस एनर्जी एमिशन बेस पर जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया तो ये कंप्लीटली फेलियर हो गई, कंप्लीटली फेल हो गई उसके बेसिक्स को समझाने में, यानी कुड नॉट एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। अब कैसे देखते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था, सबसे पहला फेलियर क्या था? हम ये कहते हैं कि वेव थ्योरी ये कहती है कि वेव थ्योरी व्हेन अ वेव फ्रंट,
क्योंकि वेव थ्योरी में हमने चैप्टर 12 में पढ़ा है वेव फ्रंट। वेव थ्योरी में क्या होता है, जो वेव्स होती हैं, ये वेव्स, इन वेव्स का क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। तो व्हेन द वेव फ्रंट ऑफ द वेव इज इंसिडेंस ऑन द मेटेलिक सरफेस, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सरफेस एब्जॉर्ब द रेडिएशन एनर्जी। तो यहां पर जब ये वेव्स जाकर मेटेलिक सरफेस से स्ट्राइक करती हैं तो इन वेव्स की जो एनर्जी है उस एनर्जी को वो सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है। सरफेस एब्जॉर्ब करने के बाद में उस एनर्जी को किसको प्रोवाइड करती है, उस एनर्जी को प्रोवाइड करती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को। अब एनर्जी लेने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटेड होकर सरफेस से बाहर आते हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। यानी अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, व्हेन द रेडिएशन या व्हेन द वेव्स स्ट्राइक या इंसिडेंस ऑन द मेटेलिक सरफेस, देन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स टाइम, बट इन आवर प्रैक्टिकल थ्योरी सेज देयर इज नो टाइम लैग। वहां पर कोई टाइम लगता ही नहीं, वहां तो इमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं। तो पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया कि वेव थ्योरी कहती है टाइम लगता है, जबकि हमारी जो प्रैक्टिकल थ्योरी है वो कहती है टाइम नहीं लगता। सेकंड कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, व्हेन द वेव फ्रंट of a wave strikes on the metal surface, the free electrons at the surface absorb the radiant energy continuously. वो क्या करती रहती हैं, कंटिन्यूअसली उस रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहेगी। और क्या होगा कि जैसे जैसे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती जाएगी उस कंडीशन में इंसिडेंट रेडिएशन की ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ग्रेटर आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। जैसे जैसे रेडिएशंस की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताया गया है, तो अगर आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के एम्पलीट्यूड भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स इंक्रीज हुए तो डेफिनेटली वहां पर जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव है वो भी ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगी। अब जब एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि हायर इंटेंसिटी की वजह से वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। यानी वेव थ्योरी ने इंटेंसिटी को एनर्जी से जोड़ दिया। वेव थ्योरी ने कह दिया कि अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। बट अवर प्रैक्टिकल थ्योरी सेज दैट देयर इज नो रिलेशन इन बिटवीन द इंटेंसिटी एंड एनर्जी। When you increases the intensity, the number of electrons are increases, not the energy, because the energy depends on the frequency, not the intensity. So this is the second failure of your wave theory. Okay, now the third, no matter what the frequency of incident radiation, wave theory कहती है कि कोई मैटर नहीं करता कि frequency of incident radiation क्या है, कोई मैटर नहीं करता उसको, तो सिर्फ किससे मतलब है, इंटेंसिटी से, उसको फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं। And no matter that what frequency of the incident radiation, it is completely depends on the intensity. And wave theory says that the intensity related to the kinetic energy. But our practical theory say कि जब तक आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को फॉल डाउन नहीं करेंगे, इंसिडेंस नहीं करेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वेव्स को इंसिडेंस नहीं करेंगे, तब तक मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो सकता। तो दिस इज द थर्ड फेलियर ऑफ द वेव थ्योरी। तो इन 3 ड्रॉबैक्स या 3 फेलियर्स की वजह से वेव थ्योरी को एक्सपेक्ट नहीं किया गया और ये कंप्लीटली फेल हो गई। ओके, तो इस वीडियो को देखिएगा और यहां तक लर्न कीजिएगा। थैंक यू।